اپنے علاوہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر اگر تمہیں الجھن محسوس ہو تو آپ کے اندر ایک حاسد انسان بیٹھا ہے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ محبت سے زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ باعزت ہو کے ناکام ہو جانا بے عزت ہو کے کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے کیونکہ یہ بھی ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر کے بڑوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو اس گھر کے چھوٹے آپ سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہی سمجھدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ جو سوچ آپ کو پریشان کرے، سکون کو خراب کرے، خود پر اعتماد ختم کرے، اسے منفی سوچ کہتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں
अगर ये दूसरों की मदद के लिए किसी काम ना आ रही हो। बाज़ औक़ात नाकामी हमें ये सिखा रही होती है कि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम किसी और काम के लिए पैदा हुए हो। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसी खुशी जो किसी को दर्द देकर हासिल की जाए वो बेमायनी है। वो शख्स आपके साथ मुखलिस है जो खुद से ज्यादा आपका ख्याल रखे। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। जो लोग अक्लमंद हैं वो मजाक की बात में से भी नसीहत को हासिल कर लेते हैं। गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमजोर कर देती है। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। जाहिल गुफ्तगू की बजाय बहस को पसंद करता है और जब उससे जवाब नहीं बनता तो आपके खिलाफ हो जाता है। अक्लमंद दूसरों की और बेवकूफ अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। तारीफ एक बहुत बड़ा धोखा होता है जो मतलब पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है। बहादुर इंसान वो है जो नफरत का मुकाबला सब्र से करता है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां सिर्फ खुदा की जात देती है। जिंदगी ये नहीं कि आप कितने खुश हैं बल्कि जिंदगी ये है कि लोग आपसे कितने खुश हैं। जब जरूरत बदलती है तो लोगों का लहजा भी बदल जाता है। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अगर किसी आदमी का किरदार मालूम करना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखें। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट किसी अफसुर्दा दिल को सुकून दे सकती है। अगर इंसान अपनी नफरत पर काबू पा सकता है तो वो कोई भी काम कर सकता है। तुम्हें हमेशा वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, भला ऐसा करने से लोगों को तकलीफ ही क्यों ना हो। जो लोग अपनी औलाद को रिश्वत की कमाई पर परवान चढ़ाते हैं उनकी औलाद अमूमन बदतमीज और बेअदब होती है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ लोग नाराज ना हो। दुनिया वो ट्रेन है जिसके हर मुसाफिर की मंजिल मौत है। 5 ऐसे रिश्ते जो वक्त के साथ कीमती होते जाते हैं मगर उनकी कदर खत्म होती जाती है। नंबर 1, वालिदैन का रिश्ता। जब हम बच्चे होते हैं वालिदैन सब कुछ लगते हैं मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उनकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। हकीकत यह है कि उनकी मोहब्बत और दुआएं हर हाल में हमारे लिए कीमती होती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें वक्त देना छोड़ देते हैं। नंबर 2, बहन भाइयों का रिश्ता। बचपन में सबसे ज्यादा लड़ाई उन्हीं से होती है मगर यही रिश्ता सबसे मजबूत भी होता है। वक्त गुजरने के साथ मसरूफियात बढ़ जाती हैं, फासले आ जाते हैं
और हम उनकी अहमियत को भूलने लगते हैं, हालांकि यही रिश्ता हमेशा साथ देता है। नंबर 3, सच्चे दोस्त। जिंदगी में हर कोई आता और जाता है, मगर चंद सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। वक्त के साथ नए ताल्लुकात बन जाते हैं और हम पुराने दोस्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं, हालांकि यही वो लोग होते हैं जो बिना किसी मफाद के हमारी फिक्र करते हैं। नंबर 4, जिंदगी का हमसफर। इब्तदा में मोहब्बत और परवाह ज्यादा होती है, मगर वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे को मामूली समझने लगते हैं। हालांकि अगर हम एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत बरकरार रखें तो ये रिश्ता सबसे ज्यादा कीमती बन सकता है। नंबर 5, उस्तादजा और रहनुमा। बचपन में हमें लगता है कि उस्तादजा सख्ती कर रहे हैं, मगर वक्त के साथ हमें एहसास होता है कि उन्हीं की रहनुमाई ने हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के काबिल बनाया। मगर अफसोस, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम उन्हें भूल चुके होते हैं। जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। पैसा आला दीन का चिराग है। अगर कभी किसी महफिल में आपकी तजलील की जाए तो सख्त से सख्त जवाब ना सोचो, बल्कि बेहतरीन जवाब सोचो, क्योंकि इखलाक बहुत कमाल की चीज है। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उनसे अपनी इज्जत करवाने के 5 बेहतरीन असूल। नंबर 1, सबसे पहले खुद को अहमियत दें और अपनी खूबियों पर यकीन रखें। जब आप अपनी कदर जानेंगे तो दूसरों को भी आपकी इज्जत करने में दुश्वारी नहीं होगी। नंबर 2, उन लोगों के साथ बातचीत में वाज़े हदूद मुकर्रर करें जो आपकी इज्जत नहीं करते। ये उनको बताएगा कि आपको किस तरह का सलूक पसंद नहीं है। नंबर 3, जब कोई आपको कमजोर महसूस कराए तो खामोश रहें। खामोशी में ताकत होती है और ये आपकी खुद एतमादी को जाहिर करती है। नंबर 4, हमेशा मुस्बत रवैया अपनाएं। जब आप खुश और मुतमईन रहेंगे तो आपकी शख्सियत दूसरों को मुतासिर करेगी और वो आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 5, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनसे दूर रहें। कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि अपनी इज्जत की हिफाजत करना सबसे अहम है। ये असूल आपको ऐसे लोगों के सामने मजबूती से खड़े होने में मदद करेंगे जो आपकी इज्जत नहीं करते। जिस इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वो अपनी जिंदगी का कीमती फैसला हमेशा गलत कर बैठता है। नेकी करने वाला हमेशा खुश रहता है, क्योंकि खुशी अच्छाई का बदला होती है। चेहरों को बेनकाब करने में वक्त का बहुत बड़ा किरदार है। इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज़े अमल तय करता है किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं। वो शख्स आपका मोहसिन है जो आप में ये यकीन पैदा करे कि हां तुम कर सकते हो। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज खत्म हो जाता है। हर वो शख्स अक्लमंद है जिसे अपना फैसला करने की आजादी है। जीतना मुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। जीनत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है।
सेहत और खुशी इंसान की खूबसूरती में इजाफा करती है।